Okay, starting with the session. Hi everyone. Thank you for joining in the session. Today's session is about lead generation for B2B businesses and freelancers. And today we have Parul with us. Hi Parul, how are you doing? Hello. Hi Harshita and hi everyone. Thank you for joining in and I'm doing good. How are you? I am doing great. I'm just looking forward to the session and learn more about the topic. And by the way, just to introduce myself, I am Harshita Garg and I'm a Yeah. college student and I am running this talk series from past 1.5 years and I have lot to learn from different speakers that are here and we have done a lot of sessions around freelancing, LinkedIn, Instagram, Twitter, like all the social media platforms, and then many other topics. But yeah, today's session is about lead generation, and I'm super excited to start with. So for the first like 40 to 45 minutes, we can hear Parul about what she has to share with us, and side by side, you can put up your questions as well. There's a chat box where you can put all your questions, and once she finishes or with a break, we can take up each question and she can answer the same. So yeah, that is how we can go with. Does that sound cool, Parul? Okay, so should I start? Yes. Yeah, Yeah, sounds cool. definitely you can start. Okay, yeah, guys, should I start? Just put a yes. Just a validation from you all. Okay, that's enough. Okay, thank you so much everyone for joining in. Firstly, thank you Harshita for this beautiful invitation and for this opportunity. Okay, so before starting, I would just like to share two, three things about myself. I am Parul, the co-founder of Wow Scripts, and also I would like to call myself as a creator because that's a word that I love more than being a founder. I don't know why, but yeah, it is what it is. Okay, after that, in this session, like we will be learning about 6 ways of getting inbound and outbound leads, which I personally use, and it's been like 1.5 year that I'm using these methods. And obviously, I'll be guiding you all through a complete roadmap on email marketing. But I would just like to request that ऐसा ना हो कि first 10-15 minutes में you guys leave. So please be with us. I'll make sure that you get something valuable out of this session. And also, I would just like to request everyone to bear with me that I have this throat allergy, so I cannot speak for more than 10 to 15 minutes in a go. So I'll be taking like 1 or 2 minute of gap in between if you guys are okay with that. And also, please make sure you guys sit in a room with a copy and a pen and note down some of the important and also not so important points. Okay, just kidding. Let's start. And yeah, also I'll be taking all the queries in the end. So basically, at the end of this session, I'll be picking two people from this session only for free consultancy call. So whatever like personalized doubts you will be having, we will work together. And yes, some of the memes also I've put it out. So those some of the meme marketers are also here. So please, guys, pardon me for bad memes. But yeah, let's move forward. And yeah, Harshita will upload the link of this form in the chat box at the end or maybe at 6:30 so you guys can fill that form. By the way, Parul, you are getting appreciation for the This meme. session is okay, that's great. I'm actually not reading the chat box because then I'll shift my mind from here to there. So yeah, I'll read the conversation afterwards. Okay, so this session is basically for freelancers and B2B owners. These two memes are basically what defines our lives. I've been a freelancer for quite a few time, around 1 year, I guess, and then 1 year into this B2B business sort of thing. So this is what how every one of us look like. And how would you look like if you reach out to potential leads? Just a minute. There you go. A lot of money, but I would suggest to not put so much of weight, otherwise it will be a problem. Now moving forward,
to some serious talks. Okay, so यहाँ पे सेशन में आने से पहले आई हैड अ लॉट ऑफ प्रेशर कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं मैं ही रीच आउट करके क्लाइंट्स ढूंढ रही हूँ. सो आई वेंट आउट टू फ्रीलांसर्स, सम रियली गुड फ्रीलांसर्स, एंड आस्क्ड देम कि आप लोग भी सेम चीज कर रहे हो या फिर मैं ही पागलों की तरह लगी पड़ी हूँ कि काम दे दो यार, काम दे दो यार. एंड ऑल्सो या आई विल बी यूजिंग हिंदी because I think that's how I can explain things in a much easier way. So if you guys are comfortable with that, then it's great. So let's find it out what the biggest freelancers in our industry has to say. Before Vedika, there is Hardik Lashkari, if you know him. So I asked him that, do you believe in reaching out to people you want to work with? He simply said, after one day actually he replied, but yeah, I got the reply. He said, I got a lot of inbound leads and then I sent cold emails religiously so that it's a mixed strategy of both inbound and outbound. I have just put it out, all the screenshot of the freelancers that I reached out to. So Vedika was nice to reply in 10 minutes. So yeah, there you go. And then I also asked Sumit Bhai, he actually told me that, do you want to make a post on LinkedIn or something? But then I told him, no, I am going to do a session. So just to give you an FYI, he is a guy who is working with MemeChat Naked, and he has also received call letter, something sort of from boat. And apart from him, yeah, that's about the freelancers. Okay, so these are the learnings. We will be, yeah, okay. Firstly, we will be talking about 6 ways of getting inbound and outbound leads, and then लिंक्डइन और ट्विटर तो ऑफ कोर्स उन पे जाएंगे ही. एंड देन जिस रीजन की वजह से आप सब लोग यहाँ पे हो, ईमेल मार्केटिंग, उसको तो बहुत अच्छे से समझने वाले हैं. बट आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट कि ये सारी चीजें तभी पॉसिबल होंगी जब आप प्रॉपरली इनको नोट डाउन करेंगे एंड देन यू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स. सो आर यू गाइज एक्साइटेड टू गेट स्टार्टेड विद दिस? बिकॉज अभी तक तो बस थोड़ा मजाक मस्ती चल रहा था. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम रियली गुड टिप्स. ओके, आई एम रीडिंग द चैट बॉक्स. Perfect. Okay. That's enough. Yeah, let's start. Firstly, 6 ways to get inbound and outbound leads. Yeah, can you guys stop chatting once because I'm actually unable to go on the second slide. Okay, perfect. Now we can continue. Okay, so six bound of getting outbound and inbound leads. Firstly, Fiverr. Fiverr is a platform, or you can say it as a tool that has worked for me in the most beautiful way. It came as a blessing in my life, you can say. Before LinkedIn, before Twitter, before email marketing, and before anything else, I tried out Fiverr. And trust me when I say this, I haven't paid any single rupee on any sort of courses. All that I learned by practicing, and the same learning I'm going to transfer to you guys as well. And after that, LinkedIn, it is probably the most successful platform in my freelancing and then in the entrepreneurial journey as well. Twitter, I started recently exploring, and 2 days back only we have converted a client from Twitter. And then email marketing, uska to पूरे अच्छे से बात करने वाले हैं. And then the company pages. So if you are someone from the agency side, or if you are a B2B owner, then company pages are also a good way to attract inbound and outbound leads. And then the sixth one, if you guys maintain some really good relations with your clients, then word of mouth marketing can be a cherry on the cake. Now, just to give you a glimpse about Fiverr, this is probably the earning when I was quite active on Fiverr, and then I converted 7 clients, not through Fiverr, but then directly. Like obviously, I met the clients from Fiverr, but then I converted them directly to Wow Scripts. So you can get an idea of how powerful Fiverr is. But this session is not for Fiverr, so I cannot guide you properly on Fiverr. All I can give you is a channel name from where I learned कि Fiverr actually कैसे काम करता है. HBS Services करके एक चैनल है. You can take the screenshot or note it down. This guy is from Pakistan, but trust me, he is really good with the Fiverr skills. All you can
I mean, whatever problems you face in your Fiverr journey, you can directly switch to this channel, and definitely you can get started from here. At least अगर content writer हो तो you should definitely go for Fiverr. I know for other things Fiverr is not a great tool. Reason is कि यहाँ पे थोड़े not so premium quality clients, but then if you have the tricks, you can convert those clients into premium clients. Now, are you guys ready to learn the email game? Because ये वाला जो पार्ट होने वाला है सबसे बड़ा होने वाला है, और इस पे इसको हम अच्छे से समझेंगे और बहुत अच्छे से क्वेरीज भी सॉल्व होंगी सब लोगों की. Am I audible, guys? I think Shrishti was not able to hear me. Yes, I guess you are audible to me and most of us. Yeah, everyone is able to hear. Shrishti, please try. Okay, Okay. she is not able. Yeah, great. I'm also writing the channel name in the link HBA services. So if you guys want to get started with Fiverr, check this out. This particular channel. सारी problems आपके solve हो जाएंगी A to Z. इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीजें बताई है. And then now let's shift to email game. So this Right. is a YouTube channel. बहुत अच्छे से focus. क्या है? This is a YouTube channel, right? Sorry. या इट्स अ यूट्यूब चैनल. सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है. इनका एक कोर्स भी है, बट आई प्रॉमिस कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. अगर आप सिंपली इनकी वीडियोस कंज्यूम करके इफ यू गेट स्टार्टेड विद फाइवर, यू कैन रियली ब्रिंग इन सम गुड अमाउंट ऑफ बिजनेस. ओके, लेट्स स्टार्ट द ईमेल थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल ना, ईमेल लिखने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि ईमेल ढूंढना. मेरी नेक्स्ट स्लाइड प्रेजेंट हो रही है अर्शिता? ईमेल स्क्रैपिंग वाली. LinkedIn वाले पे आ गए हैं अभी हम. LinkedIn is the easiest way. उससे पहले you can go backward. ओके. Yes. हाँ, ठीक है. नाउ इज इट विजिबल ना? Yes, yes. नाउ इज इट विजिबल? ईमेल स्क्रैपिंग. मेरा नेट ना हर दिन बहुत अच्छे से चलता है. ट्रस्ट मी, मैं मेरे इसमें लैपटॉप में 20-20 टैब्स खुले रहते हैं, बट आज जब काम है तो ये नहीं चलेगा. बट देन ओके, ठीक है. Yes, it's ठीक है, अभी ईमेल स्क्रैपिंग वाली स्लाइड खुल रही है ना? yes, yes. Okay, let's get started. So most of you guys asked me कि ईमेल तो लिखना सिखा दोगे, ईमेल ढूंढे कहाँ से? ये भी बात सही है. तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, बीट लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर बहुत सारे हैं. आई एम नॉट ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स इन तीनों के अलावा. ऑल्सो यूट्यूब इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, बट आई सजेस्ट कि वेबसाइट की तरफ मत जाना इफ यू रियली वांट टू गेट एन ईमेल, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपको जिस इंसान को रीच आउट करना है उनकी ईमेल नहीं मिलेगी. सो इट्स बेटर कि यू स्टिक टू लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड यूट्यूब ऑल्सो. ओके. After email scrapping, okay, so I personally use LinkedIn to get the emails from, because I find it the easiest way, and also we use YouTube because we are into scripting. So yeah, YouTube is a great platform for us. It actually depends कि आपकी target audience कहाँ पे है, but जितना मैं अभी तक audience को समझ पाई हूँ, शायद आप लोगों की target audience maximum LinkedIn पे ही होंगी. So LinkedIn is probably the easiest way to get emails from. यहाँ पे आपको 2 से 3 तरीके easily मिल जाते हैं emails लेने के लिए. सबसे पहले तो जब बैनर की आप देखते हो, बहुत सारे लोग बैनर में ना नीचे छोटा सा लिख के रखते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एंड देन इट इज युगांशु's प्रोफाइल. सो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इन्होंने ऊपर ही लिखी थी, वेबसाइट भी है. ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो आई वुड सजेस्ट, अगर आप लोग नोट कर लेंगे तो बेटर होगा व्हेन यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दीज. सब्जेक्ट लाइन सबसे पहले, आई कॉल इट एज द गॉड फादर ऑफ एन ईमेल. रीजन इज
आप खुद सोचो कि कोई आपकी रात को 2 बजे बैठ करके किसी को ईमेल मिली है, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं रात को ईमेल काम करना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग हैं दिन में काम करना पसंद करते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि स्केड्यूल कर देंगे यार, सुबह मिल जाएगी, बट ट्रस्ट मी, व्हेन वी आर एक्साइटेड टू सेंड एन ईमेल टू समवन, वी आर लाइक लिखी और भेजी, वी फॉरगेट कि अच्छा स्केड्यूल जैसा भी कुछ फीचर होता है। तो सब्जेक्ट लाइन इज इम्पोर्टेंट कि कोई कितने बजे पे बैठ के फोन देख रहा हो या फिर अपने लैपटॉप पे बैठा हो, अगर आपकी सब्जेक्ट लाइन अच्छी है ना, वो सामने वाला इंसान जरूर खोलेगा ईमेल को। तो इसीलिए पर्सनलाइज्ड ईमेल्स आई विल बी गाइडिंग कि कैसे क्या क्या लिखना है, बट एज ऑफ नाउ जस्ट कंसिडर सब्जेक्ट लाइन एज द गॉड फादर ऑफ एन ईमेल। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, ईमेल बॉडी, इट इज द डिसाइडिंग फैक्टर कि अगर सामने वाला इंसान जो है वो अगले लाइन पढ़ने भी जाएगा क्या। तो एवरी लाइन हैज टू बी क्रिस्टल क्लियर एंड एज प्रिसाइज एज पॉसिबल। दिस वी विल ऑल्सो लर्न कि इसको लिखना कैसे है या फिर कैसे है, बट एज ऑफ नाउ कंसिडर इट एज द डिसाइडिंग फैक्टर। नाउ लास्ट में कॉल टू एक्शन, द जज। डू यू रिमेम्बर अनु मलिक कि आप मुंबई आ रहे हो? तो या कॉल टू एक्शन इज समथिंग लाइक दैट कि कॉल पे आ रहा हूं मैं, क्लाइंट विल बी लाइक दैट। After that, I really don't know what is wrong with my net as of now, and I'm sorry for that. We can see the next slide, Parul. But I am unable to see that. Just a minute. Just go ahead once. Once Yeah. again. ओके सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद ईमेल सब्जेक्ट लाइंस। और ये सारी चीजें सच में बहुत इंपॉर्टेंट होते जानिए, और अगर खुद से दिमाग लगा के सब्जेक्ट लाइन नहीं लिखना चाहते हो, यहाँ से उठा के एज इट इज लगा देना, रिप्लाईज मिल जाएंगे। बट ऐसा ना हो कि एक ईमेल करने के बाद में मुझे डीएम कर रहे हो कि आपने बोला था रिप्लाई नहीं मिल रहा, और रिप्लाई मिल जाएगा और नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू सेंड कंसिस्टेंटली ईमेल्स टू बहुत सारे लोगों को। ओके सो सबसे पहला और इजीएस्ट वे is that people love reading numbers. Whenever you are sending out emails, just try कि ज्यादा अगर सोचना नहीं पड़ रहा है या फिर नहीं सोच पा रहे हो, इतना टाइम नहीं है, just play with the numbers. For example, you are targeting a creator. This is one of the easiest lines, that is, hey, I can help you reach 1 million followers. And also when I talk about numbers, last में मैंने लिखा भी है कि numbers has to be closer to what they are already at. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई इंसान अभी 10K पे है और आप उसको सपने दिखा रहे हो 10 मिलियन के। नहीं, just be practical, tell him or her that you are on 10K, I can help you with my creativity or with my services that I have to offer to you, and we can together reach at 100K. That's how these number game work. ऐसा बिल्कुल मत करना कि कोई 50K पे बैठा और उसको बहुत मतलब कहाँ कहाँ के सपने दिखा रहे हो, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। एंड देन इफ यू आर अ मीम मार्केटर, पूरे स्लाइड के अंदर आई हैव टेकन द रेफरेंस ऑफ मीम्स, बिकॉज इफ आई वुड हैव टेकन द रेफरेंस ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग, मुस्कान वुड हैव किल्ड मी देयर ऑन, because I have to keep those things confidential. After that, there's this line, memes will bring 100K new followers. And then there's the subject line, memes can get you 500K new downloads. So for example, if you are targeting any company जो कि app based है और downloads उनके बहुत मैटर करते हैं, so if you are targeting its founder or its content head, so you can tell them that the skills that I have in meme creation that can help you get new 500K downloads. So these are the promises that you can make in the subject line, and I'm sure that people would open it, because I've practiced these things and you can also practice. सेकेंड मेथड जो होगा ईमेल सब्जेक्ट लाइंस का, दैट इज टॉक अबाउट देयर रीसेंट वर्क. बट व्हेन यू वांट टू टॉक अबाउट देयर रीसेंट वर्क ना, यू हैव टू research a lot about them. For example, you are targeting someone जिनका ज़्यादा social media presence नहीं है, but you have to reach out to them. Reason is कि उन्होंने कहीं opening डाली होगी या फिर कुछ भी reason हो सकता है. अभी एक दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं कि आप किसी ऐसी कंपनी
कंपनी को टारगेट कर रहे हो जिनको भी जस्ट फंडिंग मिली है, और ऐसी कंपनीज ढूंढना कोई भी मुश्किल नहीं है आजकल। हम सब जानते हैं कि हर दिन नई कंपनीज को फंडिंग मिल रही है, और बहुत ज्यादा अच्छे खासे अमाउंट में फंडिंग मिल रही है। सो फॉर देम यू कैन राइट वन लाइन ऑन दैट, और यू कैन गिव देम अ कॉम्प्लीमेंट अबाउट देम, बट अगेन you have to do research about that. All the copywriters here in the guest panel would agree कि सब्जेक्ट लाइन लिखना जो है कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है बहुत बार, लेकिन टाइम लेगा सब्जेक्ट लाइन लिखना, बिकॉज अल्टीमेटली लोग उसी से ही आपकी ईमेल जो है खोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ सब्जेक्ट लाइंस लिखी है। फॉर इंडियाज नेक्स्ट यूनिकॉर्न स्टार्टअप। जस्ट किसी को फंडिंग मिली और आप उसको सपने दिखा दोगे यूनिकॉर्न स्टार्टअप के, क्यों नहीं खोलेगा यार? अगला यूं सोचेगा कि अच्छा मैं ही नहीं सोच रहा हूँ कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, सामने वाला भी सोच रहा है, इसको हायर कर लेते हैं। Just kidding, but yeah, these things work. And after that, you can, for example, if you are targeting RVCJ, you can write an email, what a meme game, and sorry, subject line, what a meme game, and then continue in the email body. For example, Aman, these guys are hiring meme interns as of now. मेरे को बहुत ही खुफिया अभी जानकारी मिली है कि ये लोग meme interns hire कर रहे हैं, and 2-3 of my friends have also targeted them and have gotten reward from them. So this is the line that you guys can use as of now. But सब लोग मत करना, otherwise फिर कोई नहीं खोलेगा। कुछ कुछ कर सकते हो उसमें से यूज। आगे बढ़ते हैं थर्ड टाइप से, जिससे हम ईमेल सब्जेक्ट लाइन लिख सकते हैं, दैट इज टॉक अबाउट वन ऑफ देयर फेवरेट थिंग्स। ओके, सो ऑल द नेहा कक्कड़ फैंस प्लीज पार्डन मी। और अगर कोई व्हाट इज हर ब्रदर्स नेम, टोनी कक्कड़, ओके, अगर उनके भी कोई फैंस हैं प्लीज पार्डन मी गाइस, आई जस्ट यूज्ड इट आउट ऑफ इमोशंस। Okay. In case of Ankur Warikoo, you can talk about Kendall, his latest book, Do Epic Shit, and all the way from personal finances. And most importantly, you should talk about FDs if you are talking, if you are reaching out to Ankur Warikoo. I've picked some of the easiest examples so that हर कोई समझ सके उस चीज को। Ankur Warikoo is quite famous, not quite. He is actually a lot famous. Okay. After that. आज जाते हैं ईमेल बॉडी के ऊपर। सब्जेक्ट लाइन में आई होप यू गाइज हैव टेकन द स्क्रीनशॉट्स और नोट डाउन कर लिया है, बिकॉज सी ईमेल बॉडी कितना भी अच्छा हो, कॉल टू एक्शन कितना भी क्रिस्टल क्लियर हो, सब्जेक्ट लाइन अच्छा नहीं है कोई नहीं खोलेगा, कोई फायदा नहीं है फिर ईमेल बॉडी अच्छा लिखने का। ओके, सो ईमेल बॉडी के अंदर यू कैन स्टार्ट विद 3 different ways that I'll be explaining in a while, but if you are like if you have written a subject line that is personalized, then you can continue the email body from the subject line as well. उसके बाद में आ जाते हैं, and also I have इसी स्लाइड के अंदर put it out an example of a email that we send to युगांश। उसके अंदर I'll be explaining कि कैसे क्या क्या होता है, but as of now ये चीजें नोट करते जाओ कहीं पे भी। उसके बाद में पेन पॉइंट होना एक ईमेल के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बोल सकते हैं कि Nikhil has one tip from his side. Okay, I'll be taking the tip. I actually went to the chat box section. Write subject line after drafting the message. Yeah, that's also a good thing actually. Thank you, Nikhil, for that. So Nikhil in the chat box has written, you can write subject line after drafting the message. That is a good idea also. ये भी लिखते जाओ, तो साथ साथ में चैट भी पढ़ते जाओ। और अगर इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन खुल गया है आप लोगों का साथ साथ में, बंद कर दो। जस्ट 10 मिनट की बात है, मैंने खुद ने बहुत लंबी चौड़ी पीपीटी बनाई ही नहीं है, बहुत छोटी सी पीपीटी अभी खत्म हो जाएगी 4-5 स्लाइड के बाद में। तो प्लीज इंस्टाग्राम रील्स बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। ओके, पेन पॉइंट ईमेल में होना, एक ये बोल सकते हो कि खाने में नमक के बिना खाना नहीं खाओगे ना, वो अलग बात है कि डॉक्टर ने मना किया है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वैसे ही ईमेल को कभी भी पेन पॉइंट के अलावा मत लिखना। स्टार्टिंग में ये हो सकता है कि आपको ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में नहीं डाला है पेन पॉइंट, कोई बात नहीं, इग्नोर कर सकते हो। बट अगर पेन पॉइंट है, ट्रस्ट मी, एवरीवन वुड वांट टू रीड और वुड वांट टू कॉल यू कि अच्छा ठीक है बताओ व्हाट यू कैन प्रोवाइड मी। आफ्टर दैट पोर्टफोलियो है या वेबसाइट है या फिर किसी भी बड़े क्रिएटर के साथ काम किया है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन निर्मित, जो कि अभी गेस्ट पैनल में है।
He has worked with Ankur Warikoo, so I have suggested him many a times to use Ankur Warikoo's name and whatever pitch he make, because trust me guys, it does wonders. I have used some of the clients we have worked with, उनके नाम यूज करके बहुत सारे नए क्लाइंट्स पिक करे हैं, और उससे एक जेन्युइन जो चीज है वो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि अच्छा उस इंसान के लिए काम किया है तो कुछ तो होगा इस इसकी सर्विस में या फिर इसकी स्किल्स के अंदर। तो ऐसे करके जरूर यूज करें जिन भी बड़ी कंपनीज या फिर जिन भी बड़े क्रिएटर्स के साथ आप काम करते हैं। एंड ऑल्सो इफ यू डोंट हैव योर पोर्टफोलियो और एनी वेबसाइट, एक लैंडिंग पेज बना लो, बिकॉज काम के सैंपल्स दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आफ्टर दैट लास्ट में एक छोटा सा क्लियर और कॉल टू एक्शन होना बहुत जरूरी है। और 3-4 कॉल टू एक्शन कभी भी मत दिया करो, जस्ट वन सिंपल कॉल टू एक्शन। ये भी हम सीखेंगे थोड़ी सी देर में। जस्ट गिव मी 1 minute, आई जस्ट हैव टू सिप सम वाटर बिकॉज अगेन माई थ्रोट इज नॉट बेयरिंग विद मी। Okay, perfect. Yeah, Aniket, I would answer your question in the end, definitely. Sare answers, sare queries I'll be taking one by one. Let's continue. Okay, so three different ways, as I mentioned in the last slide, is that पहला है कि you can start directly start with the pain point. For example, you can ask them, are you facing issues in creating quality content? And then you can follow up in the next line with the solution. Because अगर फॉर एग्जाम्पल सोचो आप मेरे को रीच आउट कर रहे हो और मेरे को बोलो पारुल क्या क्वालिटी स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए कोई मिल नहीं रहा क्या, आई वुड बी लाइक हाँ यार थोड़ी कमी तो है और आई वुड डेफिनेटली लाइक टू रीड दैट ईमेल। तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद अ पेन पॉइंट, इट इज बेसिकली अ चेरी ऑन द केक सॉर्ट ऑफ थिंग व्हेन यू आर राइटिंग एन ईमेल। Next one is start with the suggestion. Okay, this particular point I had a clubhouse room with Yugansh. He told me this particular thing, and because of just this one tip, I have been able to bring in some really good amount of business, some really good clients, not just the creators but also the companies. इसका मैंने example screenshot लेके लगाया है last में slide में. I'll also show you that. For example, if you are a graphic designer, you can say I like the graphics that you used in the videos, but then here are two quick suggestions for you. And suggestions has to be genuine. ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ भी suggestion के नाम पे कुछ भी टाइप करके जा रहे हो, नहीं। पहले पूरा अच्छे से रिसर्च करो जिसको भी आप टारगेट कर रहे हो, एंड देन गिव दोज सजेशंस। बिकॉज हर किसी को फ्री में सजेशन लेना बहुत अच्छा लगता है, ट्रस्ट मी। और उसको पता चल जाता है कि ठीक है सामने वाला कुछ बोल रहा है और ये मेरे अंदर कमियां है, ठीक है, लेकिन I cannot help fix those things, but maybe this person can help me. और exactly यही सेम चीज मैंने बहुत बार अपने साथ ट्राई करी है, एंड व्हेन आई से दिस आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट कि इस तरीके से बहुत सारे क्लाइंट्स हमने लाए हैं। थर्ड वन इज स्टार्ट विद द कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट सुनना किसको पसंद नहीं है, मतलब बहुत ही कम लोग होंगे जो ये बोलेंगे कि यार कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मुझे तो क्रिटिसिज्म पसंद है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता unless you are Ashneer Grover. Okay, sorry to Ashneer fans. Yeah. For example, I like your podcast gave me a new dream to work on, and then you can continue with the email. So basically, these are the things. These are the three tips from my side that you can start to draft an email. Okay, Parul, can you hear me? Yeah, yeah. Yeah, so people are saying that they found a new memer in you today.
I am already a meme creator, so it's basically not a compliment. It's kind of an insult, but then okay, I'll bear with it. That's okay. Because they are liking your punches in between the relatable हम्म, situations. ओके आई एक्चुअली ट्राई टू पुट इट आउट बिकॉज मेरे को पता है बहुत जल्दी ये टैब क्लोज हो करके इंस्टाग्राम और पता नहीं कहाँ कहाँ जाने वाले हो तुम लोग। यहीं बैठे रहो बस 10 मिनट और, उससे ज्यादा मैं लूंगी नहीं, सिर्फ 10 मिनट। चलो ठीक है, अभी एक ईमेल है जो कि हमने युगांश को भेजा था। ये ईमेल पर्सनली मैंने लिखा था और ये बहुत ही सिंपलेस्ट ईमेल फॉर्मेट है। जो भी जब भी मैंने आज तक किसी को भी ईमेल सिखाया है, दिस पर्टिकुलर ईमेल आई हैव यूज्ड हर बार बताने के लिए कि इससे इजीएस्ट तरीका नहीं हो सकता ईमेल लिखने का। तो कुछ दिन पहले लिंक्डइन पे मैंने एक पोस्ट डाला था कि आई विल रैंडमली बी पिकिंग वन पर्सन, और उनकी तरफ से मैं खुद ईमेल ढूंढ करके और ईमेल भेजूंगी उनके लीड्स को, एंड आई विल हेल्प ट्राई कन्वर्टिंग एनी क्लाइंट। तो उसके अंदर आई सेंट इट आउट दिस पर्टिकुलर ईमेल टू युगांश, and I think I sent it out from Sivakami's account, and Sivakami is there in the guest panel, so you can interact with her as well in the chat box. Okay, let's construct or decode this email. ये एक पहला हाफ है। मैंने इसके अंदर से सब्जेक्ट लाइन हटा दिया है। सब्जेक्ट लाइन वाज युगांश योर टेडेक्स इज जस्ट वाओ। आई यूज द वर्ड वाओ बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू प्रमोट वाओ स्क्रिप्ट्स। इट्स दैट सिंपल। ओके, नाउ कमिंग टू द starting point. So I started it out with a very simple method, and that is, hey Yugansh, hope you are doing well. इससे आसान तरीका तो देखो नहीं हो सकता। आप सामने वाले को क्या मतलब हाय हेलो तो करोगे ही ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में एक लाइन के अंदर या फिर दो लाइन के अंदर यू कैन डिस्क्राइब योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, Sivakami is an engineer that turned out, basically she turned to be a content writer, part-time content writer, and she is also a social media post designer. After that, third point is make them feel that you know them. For example, अगर मेरे को कोई ईमेल भेज रहा है और वो ये बोले कि hey, I am a script writer and I want to write for wow script because I have seen this that, ये करके थोड़ा बहुत अगर मेरे को कोई बताए, तो आई वुड बी इंटरेस्टेड कि चलो ठीक है, सामने वाले को कुछ तो पता है मेरे बारे में, बिकॉज मैं A to Z सारी चीजें तो बताने नहीं बैठूंगी, राइट। तो यू हैव टू रिसर्च के बिना कुछ नहीं हो सकता। रिसर्च करो, फिर सामने वाले को ऐसा फील कराओ कि यू आर अ पार्ट ऑफ देयर टीम, एंड दे वुड डेफिनेटली रिप्लाई। और इस ईमेल का भी वैसे हमें रिप्लाई मिला था। वो तो वैसे मैंने इसमें अटैच नहीं किया है, बट इफ यू वांट आई कैन ऑल्सो शो यू आफ्टर दिस सेशन। ओके, लास्ट के अंदर दिस इज प्रोबेबली द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईमेल। सो चौथा जो इसके अंदर पार्ट है, दैट इज बी क्लियर एज इन वाई यू आर राइटिंग दिस मेल। तो उसमें लिखा है कि देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम यू, एंड दैट इज वाई आई डिसाइडेड टू रीच आउट टू यू for a role of content writer and a graphic designer. This is absolutely important when you are writing, because you have to be clear why you are sending out this email. Now come to the second half of this email, which is also an important and a deciding factor कि आपको call आएगा या फिर revert आएगा कि नहीं। Your willingness to work, this particular thing is not so important, so if you want to add you can, otherwise you can skip this part. Apart from that, पोर्टफोलियो अटैच करना, अपना खुद का प्रोफाइल अटैच करना या फिर सैम्पल्स अटैच करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू गाइज नोटिस, यहाँ पे मैंने बहुत क्लियरली लिखा है कि हियर इज माई लिंक्डइन प्रोफाइल ऑफ मोर देन 15K फॉलोअर्स, विच मीन्स कि अगर आप किसी ऐसे इंसान को रीच आउट कर रहे हो जिसकी जरूरत ही है लिंक्डइन पे ग्रो करना, उसके क्लाइंट्स ही है, और आप भी सेम काम करते हो, तो 15K फॉलोअर्स जब आप बोलते हो, देखो मजाक हंसी मजाक नहीं है 15K फॉलोअर्स तक पहुंचना, ये हम सब जानते हैं। तो वेन यू प्ले विद दीज नंबर्स, सामने वाले को ट्रस्ट होता है कि अच्छा अगर कोई 15K पे बैठा है तो वो ऐसे ही तो गया नहीं होगा। तो आई यूज दिस थिंग फ्रॉम Sivakami, वॉट एवर शी हैज डन 15K फॉलोअर्स तक पहुंचने के लिए, इट टेक्स अ लॉट, एंड यू कैन डेफिनेटली यूज दीज थिंग्स बिकॉज आपने मेहनत करके 15K पे गए हो। सामने वाले को दिखाओ कि यार मैं कोई ऐसे ही गली में से उठ करके आपको टेक्स्ट नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली हम सब गली मोहल्ले में ही रहते हैं, बट देन ऐसे ही नहीं कि कल लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई और आज मैसेज कर दिया, नहीं, आपने काम करा है वो दिखाना जरूरी है, एंड इट इज अ मस्ट हैव इंग्रेडिएंट इन द रेसिपी। आफ्टर दैट एक क्रिस्टल क्लियर
और एक बहुत ही छोटा सा कॉल टू एक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कॉल टू एक्शन में मेरा सजेशन यही होगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दो डायरेक्टली। ये मत बोलो कि रिवर्ट मी ऑन दिस ईमेल, ईमेल पे यार वो ऑलरेडी है। जस्ट बोलो कि कॉल पे आओ। मीटिंग भी शेड्यूल मत करो, बिकॉज़ ट्रस्ट मी, कॉल के लिए सब लोगों के पास टाइम होता है, मीटिंग के लिए इतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं कि ठीक है गूगल मीट पे फिर जॉइन करना है, ज़ूम पे जॉइन करना है। किसी के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, बट कॉल पे आने के लिए बहुत लोग तैयार हो जाते हैं 5 से 10 मिनट। उसके बाद डिसाइड करेगा कि आप कितने ज़्यादा अच्छे सेल्स पर्सन हो, कि आप फिर कैसे कन्वर्ट क्या कर सकते हो। Yeah, we got a reward from him, and then Sivakami continued to talk to him over the call. ओके, सो कुछ चीट कोड्स मैंने लिखे हैं जो कि एजेंसी वालों के लिए भी है और फ्रीलांसर्स के लिए भी। फ्रीलांसर्स के लिए बाद में बात करते हैं, जस्ट एक सेकंड रुको। तो यहाँ पे कोई भी है जो कि एजेंसी है जिसकी या फिर किसी भी तरीके की B2B बिजनेस में हो, यू कैन ऑलवेज लिस्ट डाउन कि पहले टारगेट करो सिमिलर नीश के लोगों को। लिस्ट बना लो 10-10 की या फिर 20-20 की, आपके बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है। 5 टेम्पलेट सेट कर लो। जरूरी नहीं है कि हर बार आप सेम लिख रहे हो। यू कैन बी मेक इट लाइक कि 80% जो है आपका ईमेल का स्ट्रक्चर सेम है, 20% पर्सनलाइज उसको टच दे दिया। तो ऐसे करके आप लोग 5 टेम्पलेट सेट कर सकते हो। एजेंसी फॉक्स के लिए बेसिकली ये रीजन है कि जब आप एजेंसी में काम कर रहे हो या फिर जब आप एक कंपनी बिल्ड कर रहे हो, यू कांट रिलाई ओनली ऑन इनबाउंड लीड्स एंड यू कांट रिलाई ओनली ऑन जस्ट वन क्लाइंट। तो दिन के 10 मेल या फिर 50 मेल तक भी जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी ईमेल मार्केटर में कितनी क्षमता है ईमेल्स ढूंढने की, ईमेल्स भेजने की। एंड देन मेंटेन अ लिस्ट एंड फॉलो अप आफ्टर एवरी 10 डे, बिकॉज डोंट थिंक कि आपको पहले ईमेल में रिप्लाईज मिल जाएंगे। फॉलोइंग अप इज मस्ट वेन एवर यू आर सेंडिंग आउट ईमेल्स। आफ्टर दैट फ्रीलांसर्स के लिए एक छोटे से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या फिर चीट कोड बोल सकते हो, दैट इज एक लिस्ट बना लो और 5 लोगों को या फिर 5 कंपनीज को एट अ टाइम टारगेट करो। एंड टू फ्रीलांसर्स आई वुड रिक्वेस्ट, प्लीज पांचों की पांचों जो भी आप जिन भी लोगों को या कंपनीज को रीच आउट कर रहे हो, पूरी ईमेल A to Z पर्सनलाइज्ड बना दो। बिकॉज आप सिर्फ 5 ईमेल भेज रहे हो, आई थिंक यार दिन में 5 ईमेल भेजना वुड टेक मैक्सिमम 1 आवर। और इतना तो हम सब कर सकते हो, रोज नहीं करना है, जस्ट हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 3 दिन कर सकते हो। और हफ्ते में इफ यू रीच आउट टू 20 पीपल मैक्सिमम, इट्स मोर देन इनफ। बट लिस्ट बना लो, ईमेल को हवा में नहीं छोड़ना है कहीं भी कि ठीक है भेज दिया और इग्नोर करा, नहीं। लिस्ट बनाओ प्रॉपरली एंड देन उनको फॉलो अप करो हर 10वें दिन, ठीक है। एंड दिस ऑल्सो गिव्स यू द फ्रीडम कि आप कौन ऐसे क्लाइंट है जो कि सही में, बिकॉज जब भी हम बात करते हैं हमें पता चल जाता है कि कौन है जो हमें अच्छा खासा पे कर सकता है हमारी वर्थ का, और जो हमें एक्सपेरिमेंट करने देंगे हमारे स्किल सेट के साथ में। तो बेसिकली रीचिंग आउट टू पीपल हेल्प इन दिस वे एज वेल। एंड या फॉलोइंग अप, आई हैव बीन टेलिंग दिस अर्लियर एज वेल। फॉलो अप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 30 दिन के बाद 3 बार ही फॉलो अप करो। लिस्ट बनाओ प्रॉपरली, और आई थिंक मेल चिम्प इज देयर विच विल हेल्प यू स्केड्यूल योर ईमेल्स और बल्क में जब भी आप फॉलो अप कर रहे हो तो उसके थ्रू। Okay, so this was about emails. Now coming to the point of outbound lead from LinkedIn. Before that, are you guys okay with the things that I've shared? मतलब कुछ लगा कि okay, you can also implement these things, so that meanwhile I can sip some water. Because after this we will be moving to LinkedIn. सब सो तो नहीं गए हो? बहुत सारी क्वेरीज भी हैं। जस्ट बस मेरे को 5 मिनट लगेगा ये पूरा स्लाइड PPT रैप अप करने में। उसके बाद में आई विल बी टेकिंग योर क्वेरीज वन बाय वन। एंड थैंक यू सोविक।
मीन्स अ लॉट. ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द लिंक्डइन. ये चीज बहुत ज्यादा काम आती है. हम सब लोग लिंक्डइन पे, अगर आपने अभी तक ये चीज यूज नहीं करी है ना, बॉस, यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग रियली बिग. मतलब ट्रस्ट मी, डीएम्स भेजो, और वो डीएम मत भेजो यार 15-15, 20-20 लाइन के. कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं पढ़ता है. जस्ट बी क्रिस्टल क्लियर विद द फैक्ट कि आप उनको क्यों भेज रहे हो. और ऐसा बिल्कुल मत दिखाओ कि आप कोई सर्विस बेचने ही निकल पड़े हो कि नहीं सर ये मेरा फोन है, ये ले लो, ये पेन है, ये ले लो. नहीं, ऐसा नहीं होता है. जस्ट स्टार्ट विद सम कॉम्प्लीमेंट, और यू कैन टॉक अबाउट देयर बिजनेस और समथिंग. यू जस्ट हैव टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन. अगर किसी के साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई है, ही और शी हैज दैट नॉलेज कि वो जाके आपकी प्रोफाइल देखे आप करते क्या हो, एंड देन लेटर ऑन यू कैन पिच. अगर वो तब भी इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज बहुत बहुत ही कम टाइम ऐसा होगा कि लोग आपकी प्रोफाइल नहीं खोलेंगे, और आपको किसी ने रिप्लाई दिया है, डेफिनेटली दे विल गो एंड चेक. और बायो में वैसे भी दिख जाते हैं कि आप करते क्या हो. तो इफ दे रियली हैव एन ओपनिंग फॉर दैट स्पेसिफिक थिंग, दे वुड डेफिनेटली आस्क यू टू वर्क विद देम, और मे बी दे वुड ट्राई कि चलो इंटरव्यू ले लेते हैं, या जो भी आपकी चीज है, सैम्पल्स देख लेते हैं, जो भी है. सो दिस पर्टिकुलर मैसेज आई सेंट, एंड दे आर आर क्लाइंट्स. इनके लिए हमने बहुत सारी स्क्रिप्ट डिलीवर कर दी है. बेसिकली इनकी वजह से हमारा टैक्स भी बहुत लगा है रिसेंटली. सो आई जस्ट रोट हिम दैट आई जस्ट read about this particular XYZ from one of my community guy. Boom, what you guys are building is just wow. I obviously had to use the word wow because of wow scripts. And then XYZ concept is what has forced me to text you. Glad, good luck. That's it. After that, I received this message from him. I want to understand what kind of script writing services you guys offer. We are constantly on the lookout for interesting content ideas for the app. अब इससे आसान तरीका क्या बताऊं यार, मुझे बस ये बताओ, इससे ज्यादा आसान तरीका क्या हो सकता है. Nikhil, you haven't missed out on any things. इट्स जस्ट दैट कि सब कुछ बस यही स्लाइड है. जब तुम गए थे तब भी इसी स्लाइड पे थे, अभी भी इसी स्लाइड पे है. ओके, तो ये एक बहुत ज्यादा इजी तरीका है टू रीच आउट द पीपल. व्हाट यू कैन डू इज 10 लोगों को एट अ टाइम लिस्ट बना लो कि अच्छा ये लोग हैं जिनके साथ में मेरे को डेली बेसिस पे एंगेजमेंट देनी है, जिनको उनकी पूरी प्रोफाइल अच्छे से पढ़ लो, एंड देन स्लाइड इनटू देयर डीएम्स. ऐसा नहीं हो कि रिक्वेस्ट उन्होंने एक्सेप्ट करी और आप पहुंच गए अपना सेल्स पर्सन या फिर अपनी सर्विस बेचने के लिए. नहीं, पहले रिसर्च करो अच्छे से. क्लाइंट कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. Yeah, so I'll be taking your queries, and now I would ask Harshita, please put out this form in the comment section ताकि लोग जो है फ्री कंसल्टेंसी वाली चीज के लिए फिल कर सके. एंड प्लीज ट्रस्ट, यूज सब्जेक्ट लाइंस फॉर एग्जांपल कि यू आर जस्ट वन डिसीजन अवे, एंड देन कंटिन्यू इन द email body कि let's get on a call, and trust me, I am going to with my skill set I am going to reach you from this to that. Again, make a promise. Email I personally haven't used, but yes, वो भी सेम तरीके से काम करेगी जैसे ईमेल काम करती है. रीजन इज कि बस उसके अंदर चेंज ये होगा कि सब्जेक्ट लाइन या फिर वो सब जो है वो थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा, बट इट्स नॉट समथिंग डिफरेंट, इट्स क्वाइट सेम. बट जस्ट वन सजेशन फ्रॉम माई साइड, जस्ट बी एज प्रिसाइज एज पॉसिबल. डोंट राइट अननेसेसरी थिंग्स. एकदम क्लियर टू द पॉइंट बात करो. Yeah, that's true. Like whatever work for someone, मतलब हो सकता है कि for you work LinkedIn works the best. रीजन इज कि आपकी जो ऑडियंस है वो LinkedIn के ऊपर है, बट जो मेरी ऑडियंस है दैट रिवर्ट्स मी फ्रॉम ईमेल. ऐसे ही हो सकता है किसी की ऑडियंस है वो इंस्टाग्राम पे हो. यू हैव टू फिगर आउट कि आपकी ऑडियंस कहाँ पे है और वो कहाँ पे रिप्लाई करने में ज्यादा केपेबल है या फिर ज्यादा चांसेस कहाँ पे है. हाउ टू एनहांस माई लिंक्डइन रीच. लिंक्डइन रीच का यार देखो छोटा सा ये एक रहेगा, गिव एंगेजमेंट टू द पीपल जो कि बहुत ज्यादा टाइम तक लिंक्डइन पे रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, सो दैट दे कैन गिव यू द एंगेजमेंट बैक. दैट्स द ओनली हैक आई हैव यूज्ड सो फार. गिव एंगेजमेंट, टेक एंगेजमेंट. वही जूते दो पैसे लो, यहाँ पे एंगेजमेंट दो, एंगेजमेंट लो. दैट्स सिंपल.
यस यस, सीटीए पुट करना पहली ईमेल में, दूसरी ईमेल में, 10th ईमेल में, हर ईमेल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे 10 ईमेल बार फॉलो अप करो या कितनी बार भी करो, सीटीए देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस। बस मैं फॉर्म जो है एडिट कर दूं, 1 मिनट दे दो बस। कॉन्टैक्ट में मुझे शॉर्ट आंसर का ही ऑप्शन दिखा रहा है, सो यू गाइस कैन स्किप दैट पार्ट और एल्स आई विल रिमूव इट फ्रॉम द नेसेसरी थिंग। आई गेस ठीक है। उसमें वी कैन पुट आवर कॉन्टैक्ट नंबर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं आना चाहिए, बट स्टिल मैंने उसका जो रिक्वायर्ड है वो हटा दिया है। अभी आप लोग कर सकते हो। एंड ऑल्सो लाइक आई एम एडिंग द वन मोर क्वेश्चन, दैट इज सेशन कैसा था, थोड़ा सा वो भी बता देना ताकि हम लोग को और अच्छा लगेगा। Right, being honest, being honest. Okay, Srishti wanted to ask something that how to get leads on Instagram. So, any answer for that? Surely, yeah. Yeah, I have edited the form. Now you guys can check. Okay, I am answering the questions now. What was the question? How to get leads on Instagram? पहले एक ऊपर क्वेश्चन था. ठीक है। देखो इंस्टाग्राम का कैसा है कि आई पर्सनली यूज इट फॉर माई कंपनी पेज, बिकॉज आई एम नॉट मच ऑन इंस्टाग्राम। इट अगेन डिपेंड्स ऑन मी कि मुझसे कितने सोशल मीडिया एट अ टाइम हैंडल होते हैं। तो दैट्स वाई पर्सनल ब्रांड आई एम नॉट बिल्डिंग ऑन इंस्टाग्राम, बट येस वी डू हैव आवर कंपनी पेज ऑन इंस्टाग्राम। एंड हाउ इट वर्क्स इज, बहुत सारे लोग जो है इधर उधर से ट्रैफिक जाते हैं लिंक्डइन से, ट्विटर से, एंड वी कॉन्स्टेंटली पुट आउट content, and that's how we get inbound lead. But again, before few months I was super active on Instagram, and how I used to do was again leverage the DM option. I used to send out a lot of DMs on Instagram as well, and Instagram DMs also work, so you can definitely use Instagram DMs. But इतने लंबे चौड़े पैराग्राफ्स मत लिखो, be precise as much as possible. Okay, next question. I hope I mean, you got your answer. Next question is how to start and carry forward the conversation and DMs. कोशिश करो कि ज्यादा कॉन्वर्सेशन डीएम में हो ही ना, सामने वाले को कॉल पे ले आओ। बिकॉज रीजन इज कि जब हम व्हाट्सएप पे भी किसी से बात कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, अपार्ट फ्रॉम आवर क्रश और मे बी समबडी यू आर कमिटेड टू, अपार्ट फ्रॉम दैट वी जस्ट बंद करके दूसरे उस पे चले जाते हैं, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर, लिंक्डइन, किसी पे भी चले जाते हैं। इस वजह से कॉन्वर्सेशन डीएम्स में अवॉइड करो। बस एक बार स्टार्ट हो गई, ट्राई टू गेट देम ऑन द कॉल। How to find potential client on LinkedIn? For example, say you are a content writer, उसके अंदर figure out कि what type of content you are providing. For example, you are a मतलब social media content writer and you love creating memes. You can figure out some of the companies that have a format की memes का है उनका, वो लोग promote वैसे करते हैं। या फिर easiest way is जो बड़े meme creators हैं, they also have a team जो कि उनके behalf पे memes create करते हैं। You can reach out to them in the initial stages, and meanwhile you can start building your network. You can start putting out your own content on the LinkedIn so that people can directly reach out to you, so that you can have a visibility, a strong personal brand, so that next time when you reach out to a big company or a creator, it has more chances of converting. I hope that's quite helpful. Apart from that, can you please share any tips on how to follow up? I don't know what to write if they are not replying. देखो बात ऐसी है, देर आर 3 types ऑफ लीड्स और पीपल दैट वी थिंक कि हमारी लीड है। एक होती है सूखी लकड़ी, एक होती है गीली लकड़ी, एक होती है जिस लकड़ी के अंदर थोड़ी सी सीलन आ रही होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड सीलन क्या होती है, हल्की सी गीली। मैं राजस्थान से हूँ, तो टिपिकल मेरी लैंग्वेज हो सकता है आती होगी उसके अंदर, ठीक है। तो समझो कि जो गीली लकड़ी है ना, उसको चाहे आप कितना भी जलाने की कोशिश कर लो, ऑयल डाल दो, कुछ भी डाल दो, वो जलेगी ही नहीं, पूरी गीली नहीं जलेगी वो।
but there are other remaining two type of लकड़ीज बेसिकली. तो जो सूखी लकड़ी है उसको पहली बारी में ईमेल करोगे या फिर इन मेल डालोगे, वो रिप्लाई कर देगी. रिप्लाई नहीं आते, ट्रस्ट मी, इट्स योर टाइम टू मूव ऑन. Okay, I hope that was quite a helpful answer. But yeah, I am a copywriter and I want to work with e-commerce brands. Where to find them and whom to reach out to? Like, do I reach out to founder directly? इट डिपेंड्स कि कितनी बड़ी ई कॉमर्स की मतलब वो जो ब्रांड है वो कितना बड़ा है, हायरार्की सिस्टम कितना है. अगर 5-6 लोगों की टीम है, 10 लोगों की टीम है, 20 लोगों की टीम है, डायरेक्टली फाउंडर तक पहुंच जाओ. देखो कि क्या उनकी कोई कंटेंट की टीम है. अगर है तो कंटेंट हेड तक पहुंच जाओ, फाउंडर तक पहुंच जाओ. बट अगर कोई बड़ी हायरार्की वाली है, जैसे 20 एम्प्लॉयज है, 30 है या उससे ज्यादा है, it's always good to reach out to some of the content head and their team. Twitter is booming. How? Yeah. Parul, we have a question from Sovik. I guess you missed that. How to grab attention from startup founders whose startups are getting funded, as they have a limited time span to choose a freelancer over many at the first go. ओके, तो ये चीज जरूरी नहीं है कि बहुत सारे जो फ्रीलांसर्स है सब लोग सेम तरीके से लिखते हो. फॉर एग्जांपल, आई एम इफ यू आर कंफर्टेबल राइटिंग इन फाइनेंस, तो फाइनेंस के जो स्टार्टअप्स है उनको लेट्स से कि अगर 10 लोग भी टारगेट कर रहे हैं या 20 लोग भी टारगेट कर रहे हैं, पहली बात तो ये ट्रस्ट में इतने ज्यादा लोग एक साथ में टारगेट करते भी नहीं है. क्योंकि जब आप अपने आप को नीच डाउन कर लेते हो, कंपटीशन वहीं पे खत्म हो जाता है. तो पहली चीज तो आपको ये स्पेसिफिक सोच लेना है कि मेरा नीश कौन सा है. हो सकता है यू कैन राइट बाय रिसर्चिंग इन एनी नीश, बट यू हैव टू फिगर आउट योर टॉप 3 नीशेस जिनके अंदर आप काम कर सकते हो और जिनके अंदर आप मतलब फोड़ सकते हो एकदम जा करके. और उसके बाद में ग्रैब अटेंशन से एक छोटी सी टिप मैं दूंगी यहाँ पे. आप क्या कर सकते हो, उनके लिए कुछ ना कुछ फ्री कंटेंट बना करके लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो, उनको टैग कर सकते हो, उनकी टीम को टैग कर सकते हो. वैसे आपको अटेंशन मिल जाएगी. वही सेम कंटेंट आप उनको ईमेल कर दो, वही सेम कंटेंट आप उनको डीएम कर दो, उनकी टीम मेंबर को कर दो, कोई ना कोई तो देखेगा ही. तो ये है कि आप अपनी तरफ से सारे रास्ते अपना लो. लेट्स सी व्हाट इज आंसरेबल टू यू. ठीक है, व्हाट कैन ब्रिंग बिजनेस टू यू. आई होप दैट वाज क्वाइट अ हेल्पफुल आंसर. आफ्टर दैट हाउ टू ये हो गया था. और Shrishti, कौन सा क्वेश्चन है? Twitter is booming nowadays to how to get leads or potential clients to work with or provide services. या ट्विटर इज एक्चुअली बूमिंग. पिछले शायद 2 हफ्ते में ही या फिर 1 हफ्ते में ही, आई डोंट नो, मेरे अराउंड 200 से ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए हैं. और हमने परसों ही एक क्लाइंट जो कि एक प्रीमियम क्लाइंट हमने परसों ही कन्वर्ट करे ट्विटर से ही. सो हाउ आई डू इट, अभी मैंने ट्विटर पे आउटबाउंड लीड्स का सिलसिला स्टार्ट नहीं करा है. रीजन इसकी मेरे को काफी अच्छी इनबाउंड लीड्स आ रही हैं और इतना टाइम नहीं होता कि मैं 3 प्लेटफॉर्म से करूं. सो व्हाट यू कैन डू इज, शाम को 6 से 9 बजे तक बहुत अच्छे ट्विटर स्पेसेस होते हैं. जस्ट गो आउट देयर, रेज योर हैंड, बी अ स्पीकर. और अगर आप और अगर आपको 10 सेकंड या फिर 30 सेकंड भी बोलने का मौका मिलता है, just leverage that thing. It is very very important and probably the easiest way to bring in a lot of business from Twitter. बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स हैव डिसाइडेड कि हम तो ट्विटर से ही हायर करेंगे. इस वजह से स्पेसेस में जाओ और कुछ ना कुछ अच्छी पोस्ट वगैरह करते रहो, अपना काम दिखाते रहो, ताकि लोग क्या होते हैं फॉलो कर दिस अपना ट्विटर. एक साथ में जाओगे, कुछ भी हैंडल नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा हौच-पौच हो जाएगा. अवॉइड दैट. जस्ट गो, टेक 1 स्टेप एट अ टाइम. जस्ट टेक दोज बेबी स्टेप्स. Thank you, Jyoti. It really means a lot. Harshit, I hope you have taken some of the screenshots. It will add to my content as well. मेरे को बहुत सारा content मिल जाएगा. Just kidding. I think Muskan is also here. Or Abra, can you just take few of the screenshots from my end and then you guys can send it to me on WhatsApp. We can take last 2 questions, and uske baad I have put up your mail ID. You can like people know you on LinkedIn as well, on Twitter as well, so they can DM you if they have any more questions. Yeah, surely, So surely. let's Okay. take up last 2 questions. So for once is from Sovik, how to start incorporating memes into a marketing campaign, like how to inculcate this creativity skill or learn this approach.
Memes, about memes. मीम्स का देखो सिंपल इज, पहली बात तो जब भी आपको कुछ भी सीखना है, आप कभी भी थ्योरी पढ़ के नहीं सीख सकते हो। थ्योरी यार हम स्कूल से कॉलेज में पढ़ते ही आए हैं। अगर हमें कुछ सीखना होता हम बहुत कुछ सीख जाते हैं स्कूल कॉलेजेस में, ऐसा नहीं है कि हमने सीखा नहीं है, बहुत कुछ सीखा है। बट सिर्फ थ्योरी पढ़ के ही आप नहीं सीख सकते, यू हैव टू गो आउट प्रैक्टिस दोज थिंग्स। स्टार्टिंग में मीम्स बनाओ, जो भी आइडिया आ रहे हैं, और एक बार दिमाग चलने लग जाते हैं ना मीम्स के अंदर, it is hard to stop your brain. I sometimes, when I go to sleep, I tell my mind, please shut up, I need to sleep now. It works in that way. तो I would suggest initially memes बनाना start कर दो, और दैट्स हाउ यू कैन प्रैक्टिस दिस थिंग। और मीम कंज्यूम करो, बहुत सारे नए नए टेम्पलेट्स, उसको अपने रियल लाइफ में जो भी अभी चल रहा है ना, उसके साथ में रिलेट करने की कोशिश करो। I hope that was quite a good answer. The last question we can take from Vivek, I think. Yeah. Yes. Yeah, yeah. Industry Okay. niche is fine, but service niche is confusing. So, how did you finalize on podcasts and video scripts? Vivek, to answer your question very straightforward, we have spent our 6 to 7 months figuring out what to do in the content game। और स्टार्टिंग में हम लोग हर कुछ करते थे। व्हेन आई से हर कुछ, आई मीन वेबसाइट कंटेंट, आई मीन एकेडमिक राइटिंग, आई मीन एसओपीज, आई मीन सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग, यूट्यूब राइटिंग, पॉडकास्ट राइटिंग, बहुत सारी चीजें। बट when you put your time, पहली चीज तो डोंट गिव अप, करते जाओ, यू विल फिगर आउट एवरीथिंग ऑन योर ओन। यू विल नॉट इवन नीड समबडी एल्स टू गाइड यू, बिकॉज जब आप काम करते हो, जब सामने से क्लाइंट से रिजेक्शन आता है, ये बोल दिया जाता है कि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और बैक टू बैक यही सुनने को मिलता है, अल्टीमेटली दो चीजें होंगी, क्या तो आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने लग जाओगे, अदरवाइज आप उस चीज को छोड़ करके ये समझ आ जाएगा कि ये मेरे लिए नहीं है बट ये मेरे लिए है। तो आई वुड सजेस्ट कि काम करते रहो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, खुद ब खुद क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। Okay. With this, I guess we can end with the today's session. Let's wrap up. So, guys, if you want to put any type of feedback, feel free to do it. And thank you so much, Parul. Like, I can't just tell how the session was insightful, how much it actually benefited me personally, and obviously the people present here. So, thanks a lot for it. Thank you so much. थैंक यू सो मच गाइस, और कोई भी अगर क्वेरी या कुछ भी होता है मेरे को रीच आउट कर लो, मेल भी दे दिया है अब तो, रीच आउट कर सकते हो। आई विल ट्राई कि जितने भी ज्यादा लोगों को आई कैन हेल्प, आई वुड डेफिनेटली डू दैट। एंड ऑल्सो आई एम स्टार्टिंग paid consultancy for the one last time. If you guys want to get personalized consultancy, feel free to email me, I would definitely help you personally। Thank you so much, you guys have been a great audience, and thank you Harshita for inviting me, it really means a lot, it was worth my time। Thanks a lot. Okay, we got the Grunal's feedback. I wish I could take some of the screenshots, but yeah, I would still take, yeah, Harshita, please don't end, I just need to, Actually, don't worry, Parul. The session is also recorded, so we can go back and take the screenshots. yeah. Okay, with Okay, this, let's wrap yeah, up the session. And I have sent the Google Form link in the chat box. So uh, let's see who are the two lucky ones. Let me know, Parul, who are those two lucky ones to get surely, in. surely, we'll figure out and we'll let you know super soon। Sure. Okay, bye bye everyone, thank you so much, have a great day। Thank I you, mean, everyone. And moving forward, आज का तो हो गया है। right. Yeah, And you can also join us like for all the sessions. I keep coming up with the sessions on different topics with different speakers, and even you can see many speakers are there in the panel too. So thank you everyone for taking yeah, for taking time and getting it. Thanks a lot, and thank you, Parul. Have a great yeah, day. thank you, bye bye, take care।